हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मुअल्लिम के हैसियत से आपके सामने पेश हुआ हूं और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास। मेरे होनहार स्टूडेंट, मैं आप लोगों को आज ऑनलाइन ही के जरिए से ऑनलाइन ही के जानिब से आज आप लोगों को उर्दू पढ़ा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुने। अगर ध्यान आपका इधर उधर भटक रहा है, अगर आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो आपको फिर ध्यान को इधर उधर ना भटकाए हुए आप अपनी किताबों पर ध्यान को बिल्कुल जमा लीजिए, क्योंकि ध्यान अगर किताब के अंदर जम जाती है तो आपको आइंदा मुस्तकबिल को वह ध्यान आपको संवारेगा। आपके अंदर वो प्रहार आएगा। आप फिर जब आप बड़े होंगे आपको सो जाएगा कि ये मेहनत और ये मैं लगन के साथ पढ़ने की वजह से ये आज मुझे फल मिल रहा है। अगर आप नहीं मेहनत करते हैं और नहीं पढ़ते हैं दिलजोई के साथ, अगर दिलजोई के साथ नहीं पढ़ते हैं तो फिर कल मुस्तकबिल आने वाला में आप फिर रोएंगे, पछताएंगे, अफसोस करेंगे। क्या करेंगे? अफसोस करेंगे कि काश मैं मेहनत करता। सर लोग बोल रहे थे कि प्यारे बच्चों मेहनत करो। काश के सर के बातों पर मैं मेहनत करता, ध्यान के साथ तमाम सब्जेक्टों को मेहनत से पढ़ता, आज मुझे पछताना, अफसोस करना ना पड़ता। तो प्यारे बच्चों, इस बात को आप अपने दिमागों में बिल्कुल जमा लीजिए कि आपको मेहनत से दिलजोई के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है, आज आपका सबक है सफा नंबर 11। तो सफा नंबर 11 आप खोलिए। इससे पहले मैं पढ़ा चुका था। क्या पढ़ा चुका था? नसीहत पढ़ा चुका था। लड़ना भरना काम बुरा है। शायद कि इसको भी आप बिल्कुल ज़बान अजबर कर लिए होंगे। ठीक है, तो देखिए, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, सफा नंबर 12 में शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम और अल्लाह के वली गुजरे हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम और अल्लाह के वली गुजरे हैं। उन्हें लोग बड़े पीर साहब भी कहते हैं। उन्हें लोग बड़े पीर साहब भी कहते हैं। उन्होंने अल्लाह ताला को खुश रखने के लिए बड़े अच्छे अच्छे काम किए। किसने? अल्लाह ताला को खुश करने के लिए किन्होंने? उन्होंने
یہ ضمیر ہے نا، انہوں سے اشارہ کر رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تعالی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے لیے بڑے بڑے اچھے اچھے کام کیے، اور دنیا کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی تھیں انہیں ختم کیا۔ آپ شیخ رحمت اللہ علیہ کی تقریر بہت ہی اچھی اور زوردار ہوتی تھی۔ آپ شیخ رحمت اللہ علیہ کی تقریر بہت ہی اچھی اور زوردار ہوتی تھی۔ آپ شیخ رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم کیسے ہوئے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم کیسے ہوئے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ رحمت اللہ علیہ کو بڑی نیک والدہ ملی۔ کیا ملی؟ بڑی نیک والدہ ملی۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کو بچپن سے اچھی باتوں کی نصیحت کیا کرتی تھی، اللہ سے ڈرتی اور قرآن و حدیث پڑھنے کا شوق دلایا کرتی تھی۔ قرآن و حدیث پڑھنے کا شوق دلایا کرتی تھی۔ خود آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ، خود آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ قرآن کی حافظہ تھی۔ کیا پیارے بچوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ، یعنی والدہ کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو بولتے ہیں۔ اس کی ماں کیا تھی؟ خود قرآن شریف کی حافظہ کی ہوئی تھی، ہے نا۔ کام کرنے کے دوران بھی قرآن پڑھتی تھی۔ اس کی ماں کیا کرتی؟ کام بھی کرتی تھی۔ پیاز ہی چھلتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، آلو ہی چھلتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، چاول پکاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی۔ سمجھے؟ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں اتنی اللہ کی وہ بھی ولی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو پسند کرتے؟ تقوی پرہیزگار کو پسند کرتے نا۔ وہ بھی قرآن کا حافظہ تھی اور وہ ساتھ ساتھ ہر وقت وہ قرآن ہی پڑھتی تھی۔ بچپن ہی میں قرآن سنتے تھے، اس طرح ہر روز ایک قرآن ختم ہو جایا کرتا۔ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں کام کرنے کے دوران بھی قرآن پڑھتی تھی، اس طرح ہر روز ایک قرآن ختم ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی ایک قرآن شریف اس کی ماں روزانہ پڑھے بغیر ناغہ کیے ہوئے ایک ختم کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک ختم یعنی روزانہ بلا ناغہ بغیر غیر حاضری کیے ہوئے ہر روز ایک قرآن پاک کو ختم کیا کرتے تھے، شروع سے لے کر کے آخر تک ناس تک ہر روز ایک ختم کیا کرتے۔ ٹھیک ہے۔ بچپن ہی میں قرآن سنتے سنتے آپ رحمت اللہ علیہ کو قرآن کا بہت سا حصہ زبانی یاد ہو گیا تھا۔ بچپن ہی میں اپنے ماں کی زبانی، جس کی ماں جو قرآن پڑھ رہی تھی، تو ماں کے پڑھتے پڑھتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو زبانی قرآن یاد ہو گیا۔ اس کی ماں پڑھ رہی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سنا کرتے تھے، تو سنتے سنتے شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی
कुरान ज़बानी याद हो गया था। बचपन में ही आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिदा का इंतकाल हो गया था। बचपन ही में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का इंतकाल हो गया था। वालिदा ने आपकी परवरिश की बचपन ही में आपके वालिद का इंतकाल हो गया था, यानी उसके बाप का बचपन ही में इंतकाल हो गया था। उसकी मां ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की क्या की परवरिश की। वालिदा ने तलका इसी दीनदार छोड़े थे। वालिद ने तलका इसी दीनदार छोड़े थे, यानी मां को तरका में छोड़े थे, वरासत में छोड़े थे, और एक कुरान शरीफ उसकी मां ने हिफ्ज की थी। ये भी बहुत बड़ा वरासत है ना। आप रहमतुल्लाह अलैह दो भाई थे। आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कितने भाई थे? दो भाई थे। वालिदा ने दीनारों के दो बराबर हिस्से करके दोनों का हिस्सा अलग अलग रख दिया। उसकी मां ने वालिद ने तरका इसी दीनार छोड़े थे 80। वालिद ने उसके बाप ने 80 दीनार छोड़े थे। 80 दीनार तो 40 दीनार शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, 40 दीनार उसके भाई को, समझे। तो आप रहमतुल्लाह अलैह दो भाई थे। वालिदा ने दीनारों के दो बराबर हिस्से करके दोनों का हिस्सा अलग अलग रख दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तालीम शुरुआत तालीम अपने वतन जीलान में रखकर हासिल की। अपने वतन जीलान में रखकर हासिल की और आला दीनी तालीम हासिल करने के लिए अपनी वालिदा से कहा। एक मिनट। उस वक्त बगदाद में बड़े बड़े आलिम मौजूद थे। आपने मां से बगदाद जाने की इजाजत चाही। आपने उस वक्त अपनी मां से बगदाद जाने के लिए इजाजत चाही। उस दौर में सफर करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने अपने दिल को तसल्ली देकर प्यारे बेटे को इतनी दूर बगदाद पढ़ने के लिए भेज दिया। जिस वक्त रुखसत करने लगे तो आप रहमतुल्लाह अलैह के हिस्से में 40 दीनार आपके कपड़े में सी कर ये नसीहत की कि कभी झूठ मत बोलना। 80 दीनार था। 80 दीनार में 40 दीनार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के कपड़े में सील कर उसको दे दिया। और वो उसकी मां ने बोली, बेटा जिंदगी में कभी भी झूठ ना बोलना। तो प्यारे बच्चों, इस सबक से हमें मिलता है कि झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि पिराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मां ने नसीहत की थी कि बेटा कभी झूठ ना बोलना। तो आगे पढ़िएगा तो ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी कभी भी झूठ नहीं बोले। तो इससे हमको नसीहत मिलना चाहिए, हमको भी झूठ नहीं बोलेंगे, हमको भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी झूठ बोलना बड़ा पाप है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का रीडिंग यहीं तक रहा। आप लोग बार बार इसको पढ़ेंगे, दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे। और ठीक है, ओके।
اور تمام بچے اس ناچیز بندہ کے لیے بھی دعا میں یاد رکھیں گے، دعا میں شامل رکھیں گے. ٹھیک ہے، خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم.